सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गावे को तान होवे किसै तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को तान होवे किसै तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खेह, गावे को जी लै फिर देह, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै बेपरवाहो, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै बेपरवाहो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह शब्द गुरु लोक परलोक दे रखियक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी ने सतगुरु जी दे चरनां विच पहुँच के अपने इस शरीर नूं मस्तक नूं भागशाली बनाया है। जपजी साहब अंदर जो कि अज आप जी ने 3 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने इस पवित्र बचन विच कृपा की है कि अकाल पुरख वाहिगुरू दे रस्ते विच तुरन वाले जितने भी इस धरती ते लोग ने, उन्हां दे तरीके उन्हां दे रस्ते वखरे वखरे हैं। हर एक रस्ता जिहदे उत्ते कोई तुरे
ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਕਿਤਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਵੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਬੈਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਨ ਕਰ ਬੈਲ, ਸੁਰਤ ਕਰ ਪੈਂਡਾ, ਗਿਆਨ ਗੋਨ ਪਰ ਡਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਲ ਬਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਰਸਤਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਤਾਣ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਿਰਜਿੰਦ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਕਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਅੱਗ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਭਾਵਾਂ, ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵੋ, ਨਾ ਕਿਛ ਪੀਆਂ ਨਾ ਖਾਉ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ, ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ, ਲੋਕ ਰਾਖੈ ਭਾਉ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ, ਲੋਕ ਰਾਖੈ ਭਾਉ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੇ ਨਾਉ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤ ਦੇਖ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ? ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈਣ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ, ਅੱਗ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾਉ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਮਝੋ ਸੜ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਠ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਘਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਓਨੀ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ
जिवें एक ट्रांसफार्मर लाइट उन्नी को भेजदा जिन्नी एक बल्ब नूं चाहीदी, जे ज़्यादा चली गई तो पाट जाएगा। तो इस तरह सतगुरु सिख की करै प्रतिपाल, पालना करता है, ज़्यादा नहीं देंदा उसनूं। जिन्नी को दी खुराक है, जिन्नी को दी योग्यता है उन्नी को देगा, बाकी अपने कोल रखेगा नहीं। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ देन लई तैयार ने, पर सवाल ये है असी बड़े चिर दे करदे हां, मिलदा क्यों नहीं। उहदे दो कारण हो सकते ने। एक तो करन दा तरीका ठीक नहीं, जे करन दा तरीका फिर भी नहीं मिलेगा, तो जे करन दा तरीका बिल्कुल ठीक है फिर भी नहीं कुछ मिल रहा, इहदा मतलब अजे मेरे विच योग्यता नहीं आई। पर जिहड़ा घालिया वो किते चला गया नहीं, चला नहीं गया। वो सारी ओदी प्रॉपर्टी है, ओदी सिख दी पूंजी है, वो गुरु ने सिख दे हिस्से विच पा दी कि जिदन ये अंदरों सियाणा हो जाएगा, अंदरों योग्यता इहदी वध जाएगी, तो उस दिन इनू सारा कुछ दे देंगे, एकदम देंगे। इस करके कई बार असी कहने भी इस बंदे नू एकदम कितों मिल गया, थोड़े समय विच इन्ना क्यों मिलिया, जद के कई बड़े चिर दे तुरे होए सन उन्होंने नहीं मिलिया। इनू एकदम किवें मिल गया, वो कितों होर नहीं मिलिया, मिलिया तो गुरु की कृपा नाल। पर सच ये है उस सिख की किते गुरु की कृपा नाल योग्यता वध गई, उहदे भाग विच पहलां पिया सी, पर गुरु ने हुण उहदे हत्थां विच दे दिता भी तू इहदी वरतों कर सकना, उहदे हत्थां विच फड़ा दिता। ये कुंजी है, ये जिहड़ी गुरु कोल रहिंदी, जां गुरु साहब ने कहा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी। खजाना तो पिया है पर कुंजी गुरु ने अपने कोल रखी है। कुंजी नहीं दिती सिख नूं, खजाना उहदा जरूर पिया है, धन उहदा जरूर पिया है। कुंजी उदण मिलेगी, उस दिन गुरु सिख दी झोली विच कुंजी पा देगा जिदन उहदे अंदर पए हुए खजाने नूं वरतन लई सिख दा मन जवान हो जाएगा, योग्यता वध जाएगी। इस करके जे नहीं मिलिया तो घालना अजाई नहीं गई, उहदे खजाने विच किते इकट्ठी हो गई। तो मैं बेनती कर रहा सी कि सतगुरु ने बचन कीते, जदों कोई परमात्मा दे नाम नूं गाउंदा है, गावे को ताण, ताण नाल गाउंदा है, शक्ति नाल गाउंदा है। इत्थे ताण दे अर्थ जोर नहीं, ध्यान देना, इत्थे ताण दे अर्थ ने इकाग्रता। जोर दा ते इत्थे काम ही नहीं है। इत्थे ताण दे अर्थ ने समर्पित भावना, इत्थे ताण दे अर्थ ने अहंकार नूं छड्ड के गाउणा। नहीं तो जोर दा ते खंडन कीता गुरु साहब ने, शेखा अंदरों जोर छड्ड, तू भौ कर झल गवाए। अंदरों जोर अपने हठ नाल ना तुरी, गुरु दे सहारे ते तुर। तो जदों कोई बंदा पूरी जोर दे अर्थ इकाग्रता नाल गाउंदा है, जदों जोर लाएगा, ताकत लाएगा, शक्ति सारी ला देगा शरीर की, अद्धी अद्धी नहीं। इत्थे ताण दे अर्थ ने संपूर्ण मन ला देना, अद्धा अद्धा नहीं लाउणा। जिवें एक नोट है, वो तुसी किसी नूं देंदे हो तां की कदी उस नोट का अद्धा हिस्सा पाड़ के अपने कोल रख लिया, अद्धा अगले नूं दे दिता भी लै, देना भी चाहुंदा ते रखना भी चाहुंदा, तां उहने पूरा नोट नहीं दिता, ना उहदे काम दा रहा, ना जिन्ने दिता सी उहदे काम दा रहा, दोवें वांझे रह गए। असीं गुरु नूं देंदे जरूर हां, पर नोट की एक कन्नी जी पाड़ के लो जी, आ तुसीं रख लो, बाकी साडे कोल रहेगा। मन देंदे जरूर हाँ गुरु नूं, पर थोड़ा जिहा दे दिता, बाकी रख लिया, पूरा नहीं दिता। एक सच्चाई है। तां ही तो इत्थे वापरदा कुछ नहीं, क्योंकि इत्थे पूरे तो बिना नहीं चलदा।
जिन्ना चिर पूरा नहीं ना दिता जाता मन जीवन, थोड़ा जिहा भी बचा लिया, जे 99% दे दिता तो वो 50 पॉइंट रह गए, गल फिर अड़ी रहेगी उत्थे। पूरा 100 जिस दिन पूरा 100% दिता गया उहदे तो अगे गल शुरू होंदी है। तो ये जिहड़ा जीवन एक सिक्के वर्गा है, नोट वर्गा है, जां ते सारा देना पैंदा जां सारा ही रखना पैंदा। तो बेनती कर रहा सी ताण दा अर्थ की है, गावे को ताण। गुरु साहब ने जुगत दसी कि ताण नाल गा। ताण दा अर्थ शरीर दी जिन्नी शक्ति है उन्होंने एक सूई दे नक्के ते इकट्ठी करके उथे उन्होंने याद कर, उस थां ते उन्होंने गा। इनू कहंदे ने कीर्तन। कीर्तन करना, गाउणा। कीर्तन शब्द के अर्थ वैसे बहुत कीते ने विद्वाना ने, पर कीर्तन जिहड़ा शब्द इउं लगदा बनिया है कीरने शब्द तो। कीरने का मतलब जदों किसी दे मन विच किसी दे प्रति बड़ी कोई डूंगा प्यार पैदा हुंदा है ते ओदे वियोग विच, ओदी याद विच बंदा जदों रोंदा है, उहनूं कहंदे ने कीरने पा रहा है। तो जदों ओदी याद विच कीरने पाउंदा है तो उहदा सारे दा सारा ध्यान उहदे विच हुंदा है, 1% भी नहीं। ना उहनूं अपने शरीर दा पता, ना उहनूं अपने वस्त्रां दा पता, ना उसनूं टाइम दा पता, ना उहनूं ये पता मैनूं कोई देख रहा है कि नहीं, ना उहनूं ये कोई ख्याल रहिंदा कि मेरी आवाज़ किवें दी निकल रही है। उहनूं कहंदे ने कीरने पा रहे। कीर्तन कदों हुंदा है? जदों कोई कीर्तन इन्ना डूंगा हो के इकागर हो के इन्ने ताण नाल उसनूं गाउंदा है, उहनूं अपना आप ही भुल जांदा है। उहनूं नहीं चेता रहिंदा कौन देख रहा है, घड़ी कित्थे चली गई, काम कौन करेगा, सब खत्म। तो उहनूं कहंदे ने निर्वाण कीर्तन। उहनूं निर्वाण कीर्तन कहंदे। जिद्दण वो गा लिया दूसरा पल जीवन विच आएगा ही नहीं। ध्यान दिओ, दूसरे पल विच घालना नहीं करनी पैगी। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कहा जिद्दण तैनूं इस तरह का कीर्तन करना आ गया। तुसी ध्यान नाल कदी बाणी पढ़ना, बाणी विच एक शब्द आउंदा है, मैं लफ्ज कहा जे इस तरह का कीर्तन करना आ गया। इहदा मतलब एक इस तरह का कीर्तन, एक उस तरह का कीर्तन, दो तरह का है। और ये लफ्ज इस तरह का कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब विचों लभना, जिथे गुरु साहब ने कहा कि ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा दा मतलब इस तरह का तू प्यार कर, उन्होंने इस तरह का कीर्तन कर। महाराज इस तरह का किवें? गुरु साहब ने कहा कई उस तरह का करते हैं। किवें दा? कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर। इत्थे राग की गल है ना, नाद की गल गुरु साहब ने की है, जां वेदां की गल की। फिर अगे क्या बहु भांत कर, कई तरह के नाल। भांत दा अर्थ तरह, वो नहीं भिजदा इस तरह, इस तरह खुश नहीं हुंदा। वो किहड़े कीर्तन नाल खुश हुंदा? ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरा है। वो कीर्तन फिर इत्थे भी काम आए ते उहां दा अर्थ अगे भी काम आ जाए। उत्थे तां भोजन, उत्थे तां खुराक ही कीर्तन दी है। इत्थे तां चलो शरीर दे कई पदार्थ इनू मिल जाते खाण वास्ते, 36 प्रकार के पदार्थ गिने ने, होर भी बड़ी तरह का इत्थे फल फ्रूट इनू मिल जाता खाण वास्ते। पर उत्थे फिर ये नहीं जाता, उत्थे कीर्तन कम आउंदा। कीर्तन का मतलब प्यार भरी भगती, उत्थे वो ही खुराक जाएगी, कम आएगी। इत्थों वाला तो सारा इत्थे ही रह गया। इहां उहां जो काम तेरा है, उन्होंने कहा कि जे तू जल्दी छुटना है, छुटना है जल्दी दुख तो। बंदे की ख्वाहिश है ना, इच्छा है भी जल्दी दुख तो छुट जावां, सच्चाई है। बंदे की ख्वाहिश है ना, इच्छा है भी जल्दी दुख तो छुट जावां, सच्चाई है।
जल्दी जल्दी मेरा छुटकारा हो जाए दुखों तो। हर एक उपराला बंदा इसे वास्ते कर रहा है, ये काम करांगा सुखी हो जावांगा, अगले साल ये करांगा फिर सुख आ जाएगा, 5 साल नूं ये इन्नी माया आ जाएगी फिर सुखी हो जावांगा। ये सारा कारण यही है ना, इन्ने सालों नूं इस तरह हो जाएगा फिर मैं सुखी हो जावांगा। गुरु साहब कहते सालों की गल क्यों करना, एक पल की गल कर। जे तू उस तरह गा लिया उस कीर्तन नूं तां एक पल विच छुट सकना है। वो कीर्तन है निर्वाण कीर्तन गावहु करते का, निमक सिमरत जित जिस दे द्वारा छूटै। बंदा दुखों तो छुट जाता है, दुखों तो उसकी खलासी हो जाती है, होर कोई रस्ता ही नहीं है। किन्ने साल लग गए, किन्ने साल असी ला दिते, किन्नियां उम्रां साडे तो पहलियां ने ला दित्तियां, किन्नियां सदियां ते किन्ने दहाके उन्हां तो पहलां वालियां ने ला दिते। कादे वास्ते? दुख तो छुटण वास्ते। उन्हां दी तवारीख फोड़ के देख लो, कोई बंदा उन्हां तो उन्हां विचों इस तरह छुटिया जिवें असीं छुटण दा यतन कर रहे हैं। वैसे बंदा इस मामले विच बड़ा अखां ते पट्टी बन के रखदा है। नहीं तो तुसीं वेखोगे ना, एक डॉक्टर है हकीम है, जे 1 साल उहदे तो कोई मरीज ना बचे, 1 साल उहदे तो कोई मरीज ना बचे तो अगले साल उहदी दवाई कोई नहीं वरतदा। भी इहदे कोल इन्ने गए सी, उन्हां विचों अद्धे ते मर गए, बाकी दे मंजे ते पए ने। फिर छड्डो इसनूं, उहदी दुकान बंद हो जाती है। पर इस दुकान दे विच बड़े मरीज गए, संसार दी जिहड़ी इच्छा लालसा है, पदार्थ है, माया है, इस थां ते बड़े लोग गए साडे तो पहलां ते गुरु साहब ने क्या वो सारे ही मर गए, कुछ मंजे ते पए होए ने, पर लाइन फिर लगी हुई है भर्ती होने वालियां दी भी असी भी इत्थों ही दवाई लैनी है, इत्थों ही दुख हटाउणा असी संसार विचों। लाइन बहुत लंबी है, उत्थे वक्त ही नहीं मिल रहा। ये माया, ये संसार दा सिस्टम जिहड़ा है, संसार दी पकड़ है। इत्थों बड़े लोग निराश हो के मुड़े ने, पर अजे भी इत्थे एडमिट होने वालियां दी कोई कमी नहीं, नंबर नहीं आ रहा इन्ने लोग ने। इत्थों बड़े लोगों को निराशता पल्ले पई है, बड़े लोग भटके ने, इत्थों दुखी होए ने, पर फिर उत्थे जा रहे हैं। इनू गुरु साहब ने कहा भी बड़ियां ने पानी विच मधानी पा के मक्खन कढ़न का यतन किया सी, वो मर गए, पानी विचों कित्थों मक्खन निकलना सी। ते कहंदे हैरानी की गल, ये पहलियां ने रिड़किया, जदों वो नेत्रा छड्डन लगे ना रिड़कण वाला, यानी कि मौत आ गई उन्हां दी। संसार नूं बड़ियां ने रिड़किया। जदों उन्होंने कहा भी साडे तां हुण हथ गए, वैसे छड्डे नहीं, मौत ने छड़ाया नेत्रा, छड्डदा नहीं आदमी, मरण तक नहीं छड्डदा संसार नूं। तां उन्होंने वेख्या भी असीं तां छड्डन लगे, ये किते पानी वाली मधानी रुक ना जाए। अगले नूं आवाज़ दित्ती, कहन लगे फड़ मधानी तू रिड़क, मैं तां हुण चलां, मैनू तां मिलिया कुछ नहीं, हुण तू भी ये काम कर। उन्हें भी रिड़कने शुरू कर दिते, उन्हें भी वही काम करना शुरू कर दिता। अगले मुवे से पाछे परे, पहले अगले जड़े सी ना वो पाछे परेदार थे, हार गए, उन्होंने इतों सुख नहीं मिलिया। जो उभरे जेड़े बच गए, बाकी दे वो तो चले गए। जो उभरे से बंद लक खरे, उन्होंने फिर ये काम करने वास्ते कमर कसा कर लिया, लक बन लिया भी असी करके बेने। तो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का जिहड़ा ये एक यतन है कि बंदा दुध विच दही विच मधानी पाए, पानी विच ना रिड़के, कोई लाभ नहीं इसका। तो सतगुरु ने बचन कीते, ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कै भोलै विरोलै नीर। कोई बंदा जदों उसनूं सारा जीवन सौंप के गाउंदा है, गावे को तान
पूरी तरह सौंप देंदा है, अपना आपा दे देंदा है, फिक्र नहीं करता भी मैं जो कुछ कर रहा इहदे नाल कुछ होएगा कि नहीं होएगा, करी जांदा है। तो फिर की हुंदा, हजूर कहंदे होवै किसै ताण। जदों कोई इकाग्रता नाल समर्पित हो के उसनूं गाउंदा है तो होवै दा अर्थ है पैदा हो जाता है। होवै दा अर्थ ये होवै शब्द वरत्या जाता सी समाज विच। असीं कहंदे सां कि फलाणे घर विच बच्चा पैदा होया है। होवै दे अर्थ ने पैदा होना, अंदर सी वो शक्ति शरीर दे विच पैदा हो गई, सामने आ गई, प्रगट हो गई। ਉਹਦੇ घर दे विच फिर शक्ति ने जन्म ले लिया, ताकत आ गई। हुण जे ते उस परमात्मा दी मिली हुई शक्ति नूं लै के कोई फिर उस नूं गाउंदा रवे कि तूं दित्ती है। कई तरह की शक्ति है, कई तरह की दात है, पर इत्थे गुरु साहब गल कर रहे हैं अध्यात्मक शक्ति की। अध्यात्म दात शरीर की शक्ति जिहड़ी है। वैसे तो गुरु साहब ने कहा है, जिहड़ा कलगीधर पातशाह ने खोज की है तो जिहड़ा ज्ञान विज्ञान सानू दस्या है, उन्होंने बड़ी ये उत्ते खोज करके तां ही कहा भी एक बंदे विच 1.25 लाख आदमी जिन्नी शक्ति है, तान है, जे कोई प्रगट कर लवे तो। पर हुण असीं करिए कि सानू तो गुरु गोबिंद सिंह जी दियां तीर तलवारां तो बिना होर नहीं कुछ दिसदा। ये साडी एक त्रासदी है कि असी सिख धर्म नूं जंगजू केवल पेश कर दिता संसार विच। है तां ये गल बिल्कुल ठीक है कि गुरु साहब ने शस्त्र फड़े ने, जंग कीते, सानू उपदेश दिता है। पर की उन्होंने अपनी जिंदगी विच लगातार जंग कीते? वो तो थोड़ा समा रहे ना, लोड़ पई तो जंग कीते, जां दिन रात उन्हां दे विच ये रहिंदा सी। उन्हां दा जिहड़ा ये जरूरी हिस्सा सी कि लोड़ वेले तलवार फड़नी, असीं उहनूं संसार दे सामने इस तरह पेश कर दिता है तां लोकां दी नज़र विच ये दिखाया गया है कि सिख धर्म एक इमोशनल जोशीला धर्म है सिर्फ। तो जिहड़े लोग दूसरे धर्मां दे किस नज़र नाल देखते हैं भी ये एक लड़ाकू धर्म है। सच्चाई की सी? जिथे गुरु गोबिंद सिंह ने जोश पैदा किया, जंगी बिरती पैदा की, शस्त्र फड़ाए, कोई शक नहीं इहदे विच। उहदे नाल नाल नाम की गल की, उच्चे जीवन की गल की, सीधे जीवन की गल की। जिदण असी वो चीज़ नाल लै के तुरे, सानू सिक्खी की समझ आ जाएगी, सानू पता लग जाएगा सिक्खी की है। तो फिर ये झगड़े, ये लड़ाइयाँ तुसी वेखोगे, जिस थां ते लड़ाई मिटदी उत्थे सब तो ज़्यादा लड़ाई। सियाणियां दा एक तजर्बा है, वो कहते ने भी अज तो 100, 150, 200 साल पहला जां 100 साल पहले लै लीए, धार्मिक स्थानां ते गुरुद्वारियां विच आके झगड़े खत्म हुंदे सन, खात्मा हो जाता सी। बाहर लोग लड़ते सन, गुरु घर विच आके झगड़े खत्म हुंदे सन। हुण स्थिति ये है भी इत्थों झगड़े शुरू हुंदे ने, लड़ाई इत्थों शुरू हुंदी है। लड़ाई इत्थों शुरू होती है, प्रधान किन्ने बनना है, प्रबंध किन्ने करना है। पहला इत्थे आके लड़ाई मिटदी सी, हुण लड़ाई इत्थों शुरू होंदी, आरंभता इत्थों होंदी है। जिन्हें कोई राजनीति की कुर्सी ते भी बहना, उन्होंने पता है पहला इत्थे लड़ाई होएगी तां मैनूं लाभ मिलेगा। तां ये सानू अपने जीवन दे विच किते अपने मंजे थले जिवें कहंदे सोटा मारना चाहिए भी किते जो कुछ सानू गुरु कलगीधर पातशाह ने बख्शिश कीता सी, जिहड़ा सिद्धांत दिता सी, किते असीं उहदे विच कोई कट-वट तां नहीं कर दित्ती। उन्होंने कहा सी आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव। खालसा किहनूं कहंदे ने?
जोश एक दवाई सी, शस्त्र एक दवाई सी गुरु साहब ने दिती, पर शायद असी उस दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया तो खुराक उहदे नाल खाधी नहीं। शस्त्र रख ले कोल, होर सारा कुछ कर लिया, पर विचों उहदे शब्द निकल गया, नाम निकल गया, तो उन्हें फिर गलत असर पाया साडे जीवन ते, क्रोधी कर दिता, झगड़ियां वाले सुभाव बना दिते, एक दूजे का विरोध करन दियां बिरतियां पैदा हो गई, वाद विवाद बना दिते। क्यों? असी जड़ तो दूर चले गए। आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव। तो गुरु साहब की एक भी खोज सी कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इत्थे 1.25 लाख नाल लड़ाउण दे अर्थ एक तो बाहरी तौर ते ने, पर इत्थे 1.25 लाख दे नाल लड़ाउण दे अर्थ ने कि जिहड़ा सिद्धांत, जिहड़ी गुरमत, गुरसिੱਖੀ मैं अपने सिख विच पावांगा, जे समाज दे विच उहदे रिश्तेदारां दे विच, उहदे फील्ड विच जिथे वो विचरदा है, उहदी फैक्ट्री विच, उहदे आले दुआले जे 1.25 लाख बंदा भी उहनूं मजबूर करे भी तू सिੱਖੀ छड्ड दे, आ वेख असीं 1.25 लाख सिੱਖੀ तो बिना जिउं रहे हां, तां उहदे मन दे उत्ते उहनां दा 1% भी प्रभाव ना पवे। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਸਕਨੇ ਆ। ਲੜਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, 200 400 1000 4000 ਹੋਣਗੇ, 10000 ਹੋਵੇਗਾ, पर गुरु ने तो क्या भावें 1.25 लाख बंदा दूसरे पासे खड़ा हो जाए, तू अपना राह नहीं त्यागना, अपना रस्ता नहीं छड्डना। तो 1.25 लाख नाल लड़न का अजे भी कंसैप्ट चलता है हर एक सिख दे जीवन विच। वखरी गल असी उन्होंने केवल लड़ाई तक सीमित कर दिता। उन्होंने कहा भी खालसा सो जो करे नित जंग। खालसा किसनूं कहिंदे? जो नित जंग करदा है। तो इस तरह का तो कोई तरीका नहीं भी नित सिख जिहड़ा तलवार फड़ के सवेरे गुआढ़ी नूं आवाज़ दे भी आ मैं खालसा तां बनना है जे डांगो डांगी होवांगे। तो इस तरह की गल तो है नहीं। वो तो कदी कदी होया ना। जे गुरु साहब का जीवन भी पढ़ीए तो गुरु हरगोबिंद साहब के जीवन में 4 बारी जंग होया। हफ्ते का होएगा 10 दिन का। गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन में 14 लड़ाइयाँ हुई। सिख जगत में 2 वड्डे घल्लूकारे होए, 3 हो गए, बाद में होया। तो वो जिहड़ी नित जंग करन दी गल वो काहदे वास्ते है? वो नित जंग करन दी गल है कि जो कुछ तेनू गुरमत कही है गुरु ने, गुरसिੱਖੀ कही है, जे संसार ते समाज उहदे विरोध में चल रहा है, तू अपने राह ते तुरना है, समाज दे प्रभाव थले नहीं आउणा। समाज तो उच्चे रहना, गुरु नूं चेते रखना। ये नहीं कि समाज विच प्रचलित है जी शनिवार छोले दे के आने ने गुरुद्वारे विच। बड़े बड़े गुरुद्वारियां विच चलदे ने। शनिवार छोलियां दा लंगर है, मंगलवार मसरां दी दाल दे के आनी है, ये धागा इधर दा बंधना है, ये इस तरह करना है। ये समाज ने कीता है ना। ये जौ इधर दे रखने ने। तो ये ने समाज दियां रीतां बाहरों घसोड़ियां गईयां। ये वर्त रखना है। ये सब कुछ बाहरों घसोड़िया गया, सिੱਖੀ विच पाया गया है। सच ये है कि इस वक्त किसी भी कौम नूं कमज़ोर करन दे तरीके हुण विरोधियां ने बदले हुए ने, पर असी उही रखिया है। तुसीं वेखो कि पंजाब दे विच वड्डे वड्डे साइन बोर्ड शराब के ठेकिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ दीवारां ते ये बड़ी तरीके दे नाल इत्थों दे आदमी नूं गुरु ग्रंथ साहिब तो तोड़ना, दूर करना है। इस तरह दे फिर
इस तरह के डेरे भी बनाए गए इस ढंग के वास्ते। ਉਹਦਾ प्रयोजन सारे कुछ का यह है कि गुरु ग्रंथ साहब एक शक्तिशाली गुरु ने दुनिया में, सब तो पावरफुल। जे कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब के बहुते नेड़े चले गए तो उन्हां विच भी शक्ति आएगी, उन्हां विच ईमानदारी आएगी, जीवन आएगा। तो फिर जिहड़े झूठ फरेब वाले लोग ने उन्होंने इत्थे जिउणा औखा हो जाएगा। इस करके तोड़न दे तरीके ने बड़े बरीक, जिन्हां दी समझ नहीं आउंदी। यतन सी ना सच जानो, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की शहादत का होर कोई कारण नहीं सी। वो सारे कारण छोटे सन, भी चंदू की लड़की का रिश्ता नहीं लेना कारण है सी, पर छोटा जिहा सी। जां गुरु साहब ने खुसरो की इमदाद की, छोटा जिहा कारण सी। होर भी छोटियां छोटियां तोहमतां लाइयां गईयां, पर जिहड़ी एक बिल्कुल सच्ची गल सी वो प्रगट नहीं की गई, जिहदे करके गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई। वो कारण इतिहास ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बोल के दस रहा। वो कारण सी कि गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करना, ये करके शहादत हुई सी। लिखिया नहीं होया इतिहास ਵਿੱਚ, पर कारण सब तो वड्डा ही ये है। तो तुसीं इहदा मुलांकन करके वेख लेना भी गुरु अर्जन देव जी की कितनी उम्र हुई। पहला नहीं शहादत हुई, शहादत उदों हुई सन 1604 विच प्रकाश होया हरमंदर साहब विच, ते 2 साल बाद शहादत हो गई। सिर्फ 2 साल पे, वो भी 2 साल तां पै गए भी सरकार वालों विरोधियों वालों गुरु ग्रंथ साहब जी का सर्वेखण करना सी भी इहदे विच की है। जदों 2 साल विच उन्होंने वेख लिया तो वेख्या इहदे विच ते बड़ी तेज दवाई है, बड़ी सच्चाई है। इहदे विच जिहड़ी जीवन की रूपरेखा दिती गई है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, जे ये आदमियों के मन में चली गई तो आ सब कुछ पलट देंगे। झूठ नूं इत्थे ठहरना औखा हो जाएगा। इस यही कारण सी कि गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश तो ठीक 2 साल बाद गुरु अर्जन देव जी की शहादत हो गई। अज भी वही कारण है, तरीके होर ने। यतन यह है भी गुरु ग्रंथ साहब जी तो सिख नूं जां मनुख नूं कह लईए जां इंसान नूं, केवल सिखां दी कहानी नहीं। कोई भी बंदा गुरु ग्रंथ साहब दे बहुता नेड़े ना आवे तो असीं भटक गए हाँ, विचार नाल नहीं जुड़े। विचार शक्तिशाली बनाउंदी है, विचारधारा बंदे नूं जगाउंदी है। तो जिहड़ी बेनती साझी कर रहा सां, हजूर ने बचन कीते, जे कोई उस नूं गाउंदा है ताण नाल तो उसनूं शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस पंक्ति के अर्थ ने जे वो ताकत मिलन तो बाद उहदा धन्नवाद करे तो ये भगती का रस्ता बन जाती है। 2 चीज़ां मैं शुरू में कहियां सन, एक राह दे उत्ते तुरन वाला। 2 चीज़ां इकट्ठियां होंदियां ना तां ही गल बनदी ना। हुण जिवें एक सड़क है एक गड्डी है, 2 चीज़ां इकट्ठियां होईयां। जे गड्डी जां वाहन नहीं तो सड़क की करेगी। तो ये जिहड़ा गावे को ताण, उन्होंने जिहड़ा गाउणा है, जिहड़ा उहदा सिमरन करना है, शब्द का अभ्यास करना है, बाणी पढ़नी है, नितनेम करना है। जदों इनू करांगे ना तो साडे कोल एक तरह सीधे लफ्ज़ां विच कहां भी सवारी मिल जाएगी सानू, जिहदे उत्ते असीं रब दे राह वल जाना है। वाहन मिल जाएगा जिहदे उत्ते बह के असीं यात्रा करनी उहदे घर वल। पर हुण वो गड्डी तो मिल गई, वाहन तो मिल गया, तो सड़क किधर नूं बनाईए? शक्ति मिल गई, वाहन मिल गया तुरन वास्ते। मन कर बैल, बैल मिल गया, बैल दे अर्थ ने बलद, जिहदे उत्ते बह के तुरीदा है। हुण राह भी तो चाहिए ना। बैल तो मिल गया, गावे को तान होवे किसे तान, शक्ति मिल गई अभ्यास द्वारा, नाम जपण द्वारा। हुण राह चाहिए, वो किहड़ा? हुण ये जिहड़ी शक्ति मिली है इहदा धन्नवाद कर, इहदा शुकराना कर, इहदी अरदास कर,
ये अरदास ही राह बन जाएगी। हुण राह भी मिल गया तो तुरन वाला भी आ गया, शक्ति भी मिल गई तो रस्ता भी मिल गया। फिर वो रस्ता जिहड़ा है कम आउण वाला है, कम दिंदा है। आओ 1-2 मिनट वास्ते शब्द नाल जुड़िए सारिਆਂ ने, उन्ना समा किरपा करनी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तां ये 2 चीज़ां गावे को ताण, जे कोई बंदा उन्होंने इकाग्रता नाल जीवन की सारी शक्ति ला के गाउंदा है, भगती करदा होवे, उहदे घर विच पैदा हो जाता कि किसे ताण शक्ति पैदा हो जाती। पर जे वो शक्ति मिली तो उहदा शुकराना ना किया, शक्ति मिल जाएगी, राह नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। बहुतियां जप लिया, घालना कर लई, पर हुण उहदा कोई शुकराना नहीं। जिन्हें दिती है उहदी नहीं समझते। असी अपनियां मालां ते आधारित हो जाने आ, अपनी सेवा नूं गिण के लिख लैने, इन्ने साल कीती सी सेवा ते इन्ना कुछ मिल गया, हुण राह नहीं मिलेगा, फिर उत्थे रुक गया। तां जिन्हां ने करके उहनूं सौंप दिता, जिन्हां ने इस पंक्ति नूं जीवन का आधार बना लिया कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाग है मेरा। जां ये पंक्ति आधार बना ली कि आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ, ये तू ही कराया सारा कुछ। तां ही जिहड़ी भी बाणी रची गुरु साहब ने, उत्ते तुसां अर्थ सरवण कीते ने, सारियां दे उत्ते एक लफ्ज़ जरूर आया है, प्रसाद, गुर प्रसाद, किरपा। किरपा नाल होया सब कुछ। क्योंकि जे इत्थे आके आदमी अधिकारी बन गया, ये मेरा है, मैं कीता है, मेरी घालना सी, तां उत्थे शक्ति जरूर उहदे कोल रहेगी, वर सराप भी दे लेगा थोड़े जिहा, कोई बड़ी गल नहीं है। वर सराप चल जाणगे, चलदे ने, ते जिन्हां नूं वर सराफ मिलते हैं, जिन्हां नूं वर मिल जाते, जिन्हां दे कम हो जाते हैं, वो कहते हैं जी आप जी बड़े महान पुरुष हो। ते जिहड़ा वो वर सराफ दे रहा वो उन्हां दीयां गल्लां विच आ जांदा भी हुण तां मैं बस हो गया पूरा, मैं गल कही सी इस तरह हो गई। इस तरह तो हो ही जाएगा, क्योंकि शब्द विच शक्ति है ना। पर भटका दिता लोगों ने, उत्थे ही रस्ते विच रोक दिता। हुण उस रस विच जीवन चलना शुरू हो गया। तां सतगुरु ने बचन कीते, जदों ताकत आवे तां उहदा तरीका की पहुँचाउण दा। जदों तू कुछ धर्म का काम करे, उन्नू अपने वो तेरे कोल रवे, तेरा भांडा भरिया जाए, उहदे नाल उहनू बचाउण दा की तरीका है। बस इको तरीका, जदों तू कीता बाद विच भुल जाए भी मैं इन्ना कुछ कीता। करी जरूर, करन तो बिना नहीं होना। कोई धर्म इस तरह का नहीं जिथे मेहनत तो बिना कुछ मिलता होवे, किते नहीं है। आदमी नू करनी पैगी मेहनत, पर जे उन्हें मेहनत करके ये छड़ दिता कि तू ही कराया है जां तू ही कीता है, ये कराया शब्द भी थोड़ा जिहा विच बंदा लत्त अड़ाउंदा है। ध्यान दिओ भी कराया तो तू पर कीता तो मैं ही ना, फिर थोड़ा जिहा बच गया। ये टाईफाइड है हंकार, जिहड़ा छड्डदा नहीं जान आदमी दी, अंदर पकड़ के रखदा है। तां गुरु साहब ने गल ही मुका दित्ती, कहन लगे हऊँ ना ही किछ मैं ना ही।
ना मेरा शरीर, ना मैं करन वाला, तू ही है सब कुछ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਏ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬਸ ਛੱਡਣਾ, ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦਿਆਂ ਤੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 2 3 4 ਕਈ ਗੱਲ ਤਾਂ 11 12 13 ਤੱਕ ਆਏ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਿੰਦੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ 13 ਦਾ 13 ਬਣ ਗਿਆ। 13 ਸਾਰਾ ਦਿਨ 13 13 ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ 14 ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 13 ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 13 ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਸਨ, 13 ਦੇ ਭਾਵ, 13 ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ 13 ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 13, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 13, ਪਰ ਵੈਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖਾਓ 13, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 13, ਅਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ 13। ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 13 ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਵਿਦਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਹੁਣ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ